Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of family law. So today we will discuss succession in case of female dying intestate part 2nd under Hindu Succession Act 1956. So in the previous lecture we have discussed the part 1st of succession in case of female dying intestate. You can watch that particular video from my YouTube channel. You can select the playlist of family law where you will get the first part of this particular lecture. So let us proceed towards our topic. So as we have already discussed in the first part that the general rule of succession in case of the property of a female Hindu, section 15. So the property of female Hindu dying intestate shall devolve according to the rules set out in section 16. कैसी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होंगी ये सेक्शन 16 में बताया हुआ है, लेकिन किसको जाएगी प्रॉपर्टी दैट इज डिस्कस अंडर सेक्शन 15 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी इन शॉर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्टली upon the son and daughter including the children of any predeceased son or daughter and the husband. तो पहले प्रॉपर्टी जाएगी जिस फीमेल की डेथ हो गई है उसके सन और डॉटर और उनके चिल्ड्रंस और हस्बैंड को. अगर इसमें से कोई भी नहीं है, सेकेंडली अपॉन द हेयर्स ऑफ द हस्बैंड. अगर ऊपर से कोई भी नहीं है तो सेकेंडली द प्रॉपर्टी विल गो टू द हेयर्स ऑफ हस्बैंड. सेकेंडली हस्बैंड के हेयर्स जो है उनको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी. ऐसा ट्रीट होगा कि अब हस्बैंड की डेथ होगी इंटेस्टेट और उसके लीगल हेयर्स जो रहेंगे क्लास 1 क्लास 2 एग्नेट कॉग्नेट उनको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. बट सपोज इफ देयर इज नो हेयर्स ऑफ हस्बैंड, अब हस्बैंड के हेयर्स भी नहीं है, तो thirdly upon the mother and father. So if there is no heirs of husband, then thirdly property will go to the mother and father of intestate. जो फीमेल की डेथ हो गई उसके मदर एंड फादर को प्रॉपर्टी जाएगी. If there is no mother and father, then fourthly upon the heirs of the father. अगर जो फीमेल की डेथ हो गई उसके मदर और फादर भी नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि उस फीमेल के फादर के हेयर्स, उसके फीमेल के फादर के क्लास 1 हेयर्स क्लास 2 हेयर्स एग्नेट कॉग्नेट उनको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. बट सपोज इफ इवन देयर इज नो हेयर्स ऑफ फादर, फादर के हेयर्स भी नहीं है, तो लास्टली अपॉन द हेयर्स ऑफ द मदर, लास्टली प्रॉपर्टी जाएगी अपॉन द हेयर्स ऑफ मदर. अब मदर के हेयर से क्या देखा जाएगा और मदर के हेयर्स को प्रॉपर्टी जाएगी. सो लाइकवाइज इफ एनी फीमेल डाइंग इंटेस्टेड प्रॉपर्टी विल गो टू दीज पर्सन. अगर एंट्री ए है तो एंट्री बी से ई तक किसी को नहीं मिलेगा. इफ देयर इज नो एंट्री ए देन एंट्री बी, इफ देयर इज नो एंट्री बी देन एंट्री सी एंड सो ऑन. सो अकॉर्डिंगली द प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन 16, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग हेयर्स ऑफ अ फीमेल हिंदू. अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा प्रॉपर्टी का, इन व्हाट मैनर द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टेट, in what manner the property of a female Hindu will be distributed amongst the heirs which are classified under section 15. So the order of succession among the heirs referred to in section 15 shall be, and the distribution of the intestate property among those heirs shall take place according to the following rules. अब कुछ रूल्स है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी. The first rule is that among the heirs specified in subsection 1 of section 15, those in one entry shall be preferred to those any succeeding entry, and those included in the same entry shall take simultaneously. So the first rule of distribution of property says that suppose if the person who comes in the first entry are present, then they will be preferred and the entry second to last will be excluded from inheritance. And if more than one person found in the same entry, then they will take simultaneously, उनको simultaneously प्रॉपर्टी मिलेगी. मतलब अगर एंट्री फर्स्ट में अगर जो फीमेल की डेथ हो गई उसके चिल्ड्रंस और हस्बैंड है तो प्रॉपर्टी उनको दे दी जाएगी. बाकी के जो एंट्री 4 है उनको प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं मिलेगा. तो क्या होगा, सपोज हस्बैंड है, सन और डॉटर है उस लेडी का, तो तीनों में इक्वली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. दैट इज अ फर्स्ट रूल. ये फर्स्ट रूल के हिसाब से प्रॉपर्टी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी. रूल सेकंड, इफ एनी सन और डॉटर ऑफ द इंटेस्टेड हैज प्रीडिसीस्ड,
the intestate leaving his or her own children alive at the time of the intestate death, the children of such a son or daughter shall take between them the share which such son or daughter would have taken if living at the intestate death. Suppose if a female dying intestate leaving behind a husband, one son and daughter, अगर फीमेल की डेथ होती है उसके पीछे उसने हस्बैंड को छोड़ा है और सन और डॉटर, बट सपोज वो सन है जो फीमेल का, वो सन वो फीमेल के लाइफ टाइम में ही उसकी डेथ हो गई है और उसके दो बच्चे हैं वो सन के, तो उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? हस्बैंड को जाएगा प्रॉपर्टी का तीसरा हिस्सा और उस फीमेल के डॉटर को जाएगा तीसरा हिस्सा, और जो सन जिसकी डेथ होने वाली है उसका तीसरा हिस्सा उसके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो दैट इज द रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एज पर रूल सेकंड. तो रूल सेकंड के हिसाब से प्रॉपर्टी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी. नाउ रूल थर्ड. So the devolution of the property of the intestate on the heirs referred to in clause B, D and E of subsection 1 and subsection 2 of section 15 shall be in the same order and according to the same rule as would have applied if the property had been the father's or the mother's or the husband's, as the case may be, and such person had died intestate in respect thereof immediately after the intestate death. तो अगर फॉर एग्जाम्पल द डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द इंटेस्टेड ऑन द हेयर्स रेफर्ड टू इन क्लॉज बी, डी और ई. अब अगर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होने वाला है जो सेक्शन 15 में क्लॉज बी, डी और ई में बताया वाला है. क्लॉज बी में कौन है? अपॉन द हेयर्स ऑफ हस्बैंड वी हैव डिस्कस. क्लॉज डी में कौन है? अपॉन द हेयर्स ऑफ फादर. एंड क्लॉज ई में कौन है? अपॉन द हेयर्स ऑफ मदर. तो रूल 3 ये बोलता है कि जब कभी भी हस्बैंड के हेयर्स में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आएगी तो ऐसा ट्रीट होगा कि हस्बैंड की इंटेस्टेड डेथ हो गई, हस्बैंड की डेथ हो गई. अब अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी अगर होती तो उसके क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट और कॉग्नेट में डिस्ट्रीब्यूट होती. तो लाइकवाइज रूल थर्ड के हिसाब से अगर हस्बैंड के हेयर्स में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट, कॉग्नेट में डिस्ट्रीब्यूट होंगी. वैसा ही क्लॉज डी के हिसाब से उसके फादर के हेयर्स में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी. फादर की डेथ होगी, इंटेस्टेड ऐसा ट्रीट होगा और उसके लीगल हेयर्स में प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. सेम अगर ई में मदर के हेयर्स में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होंगी अकॉर्डिंगली. तो ये थे रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16. आई होप you understand this particular topic, part second of female dying intestate. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.